कुछ तो लफड़ा है, एक्स्ट्रा लाइट आ रही है, ये आएगी इसमें। अब क्या करें? सबसे बढ़िया चीज है पॉर्न। आप देखो, लुकिंग अपॉन गर्ल्स ओवर बार काउंटर्स, एंड फिर 2 मिनट में फ्री कर देते हैं उनको। Hello and welcome to another episode of Curious Podcast. And today we have with us someone who's a really good friend of mine, Dipesh, who also happens to be a certified nutritionist and a model and an actor. दीपेश के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो इन सारे लेबल्स को साइड में रख के ही समवन हु नोस हिज माइंड एंड बॉडी वेल. सो वी वेलकम यू. थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया तुमने। वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर. सेम यू। हाँ जी. So, first thing, so today we're going to talk about cheat codes to happiness. So, Favorite. happiness happens to be something which people are struggling with nowadays because happiness is something जो बहुत सारे लोग superficial चीज़ों से relate कर लेते हैं. तो I want to ask you something which is personalized in terms of your own definition of happiness. Tell me about it. आई एम हैप्पीनेस। जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मेरे मन में यही जवाब आता है कि आई एम हैप्पीनेस, जो कि सच है। आई एम नॉट सीकिंग इट विदाउट। और जो लोग अक्सर हम लोग यही करते हैं ना, वी होल्ड ऑन टू people or situation or things, materialistic things and stuff like that all the time, कि ऐसा हो जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, इतना इतना हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों? तब तक क्या करोगे? बी हैप्पी एंड यू कैन अचीव ऑल दोज थिंग्स। once you get into it, once you get this thing straight into your head कि it's that easy कि हम हमारे goals, हम हमारी चीज़ें हैप्पी रहकर भी अचीव कर सकते हैं, ना कि वो अचीव करेंगे तब हैप्पी हो जाएंगे। तो that's my definition that I am happiness. What I think about happiness is if we just connect it towards simple biology, happiness happens to be an emotion, and emotion is nothing but energy that is in motion, and it True. is which is directly related to our nervous system. मतलब अगर हम छोटी सी बात करें कि हैप्पीनेस बहुत बार लोगों को लगता है कि दे हैड अ बैड डे. फॉर एग्जांपल आई हैड अ वेरी बैड डे एट वर्क एंड आई एम बैक होम एंड आई एम फीलिंग वेरी ड्रेन्ड. There are simple things that you can do just to make yourself feel better and True. feel happier, because happiness is an emotion. Obviously हम लोग उस चीज़ को एक feeling की तरह portray करते हैं, perceive करते हैं, but at the same time there are hormones like serotonin, endorphin, oxytocin, if I'm not wrong. नहीं, it's Yeah. true. That are basically biological transmitters that make us feel that feeling that we're talking about. True. और तो आपका सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि you tell us something about hormones and how hacking happiness is easy. What are the few things that we can do in our life? What's the cheat code for happiness? Joy, which arises from within. तो उसके लिए यशस्वी बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं to know your mind and body well. And when I say this, people always, there's too much noise out there, you know that, right? कि know your mind and body well, know your mind and body well, but how? Nobody tells you how. Exactly. It's that easy. The first and foremost thing which we can do, which one should do, which I do, is to like connect to your being. Get down to your roots. अपने दादा परदादा को देखो यार, वो क्या करते थे? तुम्हारे एंसेस्टर्स क्या करते थे? वो यूट्यूब पर जाकर सर्फ नहीं करते थे कि what is this so and so supplement, what is this so and so magic pill. There's nothing like that. Connect to the nature ना. अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप खुद को कितनी देर देते हो that you are barefooted on grass or you have direct contact with the ground? No, we have caged ourselves in such a way कि हम लोग करते ही नहीं वो चीजें. एंड जितना हम कट ऑफ करते जाएंगे नेचर से, विथ द डिवाइन, विद मदर नेचर, दैट्स द डाउनहिल रोड देन. I think that's
द पॉइंट दैट यू जस्ट मेंशन, हम्म, ये चीट कोड, अगर हम चीट कोड्स ही मेंशन करें तो सबसे बड़ा चीट कोड यही है, बिकॉज जैसे हमने अभी बात की कि हैप्पीनेस एक इमोशन है। हम्म, एट द सेम टाइम अगर हम हैप्पीनेस की बात करें ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, हम्म, तो हैप्पीनेस इज नथिंग बट हर इंसान अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार है। जी, देर इज नो पॉइंट ऑफ डिपेंडिंग ऑन एनीबडी एल्स फॉर योर हैप्पीनेस। ट्रू, Whatever, of course we get happiness from our pets, our हम्म, friends, our family, but वो हमेशा हमारे 100% happiness में एक एड ऑन होता है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई फील। दैट्स द बोनस। आफ्टर ऑल ह्यूमंस क्या है, एक सोशल एनिमल है। सोशल हटा दो, एनिमल अभी भी इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर, वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर। एग्जैक्टली, इफ यू एवर नोटिस कि जब भी हम नेचर के आसपास होते हैं, इफ देयर इज अ ट्री, यू टच द ट्री, यू कैन फील द एनर्जी फ्लोइंग इन योर होती है पार्ट्स। ना, होती है। इट्स लाइक अगर आप सुनोगे तो आपको एनर्जी महसूस होगी। Definitely. हम्म, How does the sound of water heal you? How does हम्म, wind hitting your face heals you? How एग्जैक्टली, does going out in the sun, um, early morning, हम्म, maybe हम्म, around 8 9 a.m. हम्म, as well, it works. हम्म, You go for a walk, don't exert yourself. हम्म। A simple sa walk also makes your day better. ऑल्सो यू सडनली स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, और Exactly. तुमको ऐसा लगता है, तुम बात करते हो कि हाँ, पता नहीं क्यों। हाँ, अरे पता करो ना क्यों। exactly. वही रीजन है, Mhm. वही रीजन, यू कनेक्ट बैक टू योर रूट्स। तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि चीट कोड नंबर 1, True that. कनेक्ट टू द नेचर। अभी के जो लाइफस्टाइल है उसमें ना ह्यूमन बॉडी को सर्वाइवल मोड पे डाल दिया है, इज व्हाट आई फील। या मतलब कॉन्स्टेंटली वी आर अंडर काइंड ऑफ स्ट्रेस, जो वर्क एनवायरनमेंट में मिलता है बहुत बार। इफ यू आर इन अ जॉब, देयर इज सो मच प्रेशर टू मीट योर टारगेट्स, टू अचीव वट एवर गोल्स दैट यू हैव टू बाय द एज ऑफ सो बिकॉज I don't, सोसाइटी। I don't judge that thing. Matlab, people are different. They have their own ways to live. But there are people who have responsibilities and have to achieve certain things by some or the other age. But the direct impact happens on their health because ट्रू, ये पूरा सर्वाइवल मोड है। अर्ली ह्यूमंस जो थे, उनकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे तब जाती थी जब वो हंट पे निकलते थे, फॉर डेली। एग्जाम्पल। हाँ, और फिर उसके बाद उन्हें कोई थ्रेट फील होता था, एंड देन दे यूज टू कम बैक एंड देन फील बेटर व्हाट्सएवर। बट हमारी बॉडी, माइंड जो है वो अभी भी वही माइंड है जो उनके पास था और हमारे पास है। तो बस बात ये है कि थ्रेट अब कोई शेर नहीं है या कोई एनिमल नहीं है। थ्रेट ये है कि कॉन्स्टेंटली टारगेट्स हैं, कॉन्स्टेंटली डेडलाइंस है जो मुझे मीट करनी है। तो मुझे पता है मेरी डेडलाइन है, बट मेरे ब्रेन को तब भी लगता है कि ये तो थ्रेट है, एंड दैट इज वाई माई बॉडी इज कॉन्स्टेंटली इन अ सर्वाइवल मोड। एंड like you mentioned, it is easy, but people don't have that kind of wisdom. See, what happens is, since you mentioned कि उन्होंने रोज एक लाइफस्टाइल अपना लिया है, दे live in a box, they get out from that box we call home, houses, so called well beat concrete walls we have, चार दीवारी। निकल कर हम कार में बैठते हैं, चार दीवारी। True that. वहां से निकल कर हम जाते हैं ऑफिस में, वो भी चार दीवारी है। Chahdiwari. तो वी वर नॉट मेंट टू स्टे Indoors. ऑल द टाइम इंडोर्स। Mhm. आप देखो ना क्यों, वाई पीपल आर फ्राइंग अप देयर हॉर्मोन्स, वाई पीपल आर गेटिंग ऑल हॉर्मोनल हाईजैक। एक रील देख ली, एक वीडियो देख लिया, एक मैसेज देख लिया, दे आर गोइंग गागा ओवर अ पर्टिकुलर इमोशन। वाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज दे आर नॉट एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू टू नेचर। चार दीवारी में से निकल रहे हैं, फिर कार में बैठ रहे हैं, फिर चार दीवारी में जा रहे हैं। तो दिस लूप शुड ब्रेक। करेक्ट। आई फील लोगों को शॉर्ट डोपामिन हिट्स की आदत हो गई है। हाँ बिल्कुल हो गई है ना। there's too much noise out there। आज तुम 5 साल के किसी लड़के को देखो या 50 साल के किसी बुजुर्ग को देखो, है ना, बीट irrespective of gender, what are they doing? Scrolling reels. Even while they are having food, they are scrolling reels. True. They are talking to their partner, they are scrolling reels। ठीक है, they are scrolling। आपके पास बात करने को नहीं है, you talk memes। True. You talk memes? Seriously? When will you talk about the feelings? When will you talk about the emotion? When will you talk about the connect? आप वही रील आप डिस्कस कर रहे हो। मैं आई वॉज देयर इन अ पब्लिक सिटिंग, सो पीपल दे वर डिस्कसिंग, अरे मैंने तुझको 2 दिन पहले वो रील भेजी थी, देखी?
वो मीम देखा था भेजा, जो भेजा था वो देखा? अरे 2 दिन पहले वाली मीम तू अब डिस्कस करेगा तो ये जो हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट ये कब डिस्कस करेगा? जिएगा। करेक्ट। तो this is the society we live in, and if we do not choose to scroll reels and to consume that junk, हम अलग दिखेंगे. करेक्ट। तो अभी तो सिंस वी स्पोक अबाउट ऑल द फॉल्स दैट आर इन दिस सिस्टम, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द लाइफ चॉइसेस दैट वी कैन मेक टू Okay. फॉर अ बेटर लिविंग। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है फिटनेस। और बिल्कुल. फिटनेस से आई डोंट मीन के सिक्स पैक एब्स बना लिए और हाँ. मतलब एकदम बॉडी वॉडी बना लिए डोले शोले। बिल्कुल सही बोला. व्हाट आई मीन बाय फिटनेस इज माइंड एंड बॉडी वेलनेस, कोऑर्डिनेशन एंड हेल्थ। वाह. तो आई Being in sync हाँ, with mind and body. सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और एस्थेटिक वोग मॉडल जैसा दिखना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल पर आपकी जो बेसिक फंक्शन है बॉडी के वो हेल्दी होने चाहिए। उस सही चीज़ है. से आई फील के बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. थिंग्स विल वर्क। See, fitness nowadays, since we are into, again, this comes to our phone, जो हम देख रहे हैं, be it Bollywood, be it Hollywood, हम वो बनना चाह रहे हैं. ठीक है. It's good to have बॉडी idols. गोल्स, या It's good to have body goals. मगर उसके पीछे का देखो ना यार, True. कि what substance are they taking. Interest me कि जितने लोग जो फिटनेस को अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिटनेस इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. अगर मैं तुमको कहूँ कि तुमको जिम भी जाने की जरूरत नहीं है, हाँ बहुत लोग मुझसे ऑफेंड हो जाएंगे, अरे जिम के लिए मना कर रहा है. जाना इज गुड, मगर क्या सिर्फ जिम जाकर ही फिट रहा जा सकता है? दैट्स नॉट. अगर यू हैव टू अचीव सर्टेन एस्थेटिक, यू मस्ट गो, यू शुड गो, you have to go. But if you have to like maintain a good physical stature with a good mental well-being, it's not necessary. आई एग्री। If your time and pocket allows, go to gym. क्योंकि gym के पीछे बहुत सी चीजें हैं. You know that, right? One has to maintain A diet. standard of living. By that I mean a good diet. By that I mean other things too. ट्रू, फिटनेस इज फैंसी नाउअडेज, नो? Exactly, exactly. इट्स लाइक जैसे टेनिस को रिचमेंड स्पोर्ट बोलते हैं, वैसे ही जिम हाँ, जाना अपने आप में हाँ. एक शो ऑफ हो गया है, अपने True. आप में एक लग्जरी हो गया है कि नॉट दैट एवरीबडी इज ऐसा नहीं है कि Hmm. देयर आर ऑब्वियसली देयर आर जिम्स दैट फिट इन एवरीबॉडीज बजट एंड Hmm. एवरीबडी इज गोइंग टू जिम, बट देन थोड़ा सा फैंसी तो है, मतलब है ना, वो हाँ, कर दिया है ना है। आपके सो कॉल्ड जिम ब्रोस ने हाँ, कि अरे तू जिम आ रहा है, मैं तेरे को देख रहा हूँ तेरे हाथ में शेकर नहीं है, मैं देख रहा हूँ तू बीच में BCAA नहीं पी रहा, BCAAs नहीं पी रहा, तेरा EAA का है, तू कौन सा प्री वर्कआउट पी रहा है. द किड इज माइंड फक्ड. एग्जैक्टली। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज. नो नो, इट्स ऑलराइट। देन द किड इज माइंड फक्ड कि फिर अब तो यार भैया ने बोला है तो आना पड़ेगा. देन दैट किड, अगर वो खुद कमा तो ठीक है, नहीं वरना उसके पापा के पास रहेगी बात डेफिनेटली। कि नाउ ही हैज टू प्रोवाइड. It was not that difficult. And it is not that difficult if you stop the bullshit, if you stop the noise going on the social media and your so-called gym bros, gym gurus, which also happen to give you magic pills. नहीं खानी वो magic pills. बिल्कुल भी. हाँ, मतलब टॉकिंग ऑफ मैजिक पिल्स भी तो महंगी आती है, मतलब वो हाँ, तो है एक चीज, बट और उससे ज़्यादा it will cost you your organs, it will cost you your mental well-being, it will cost you your reproductive health, it will cost you your heart health, what not. पर हाँ, you can look good for that upcoming photo shoot. You can look good. टेम्पररी Temporary. बहुत सारे लोगों को टेम्पररी चलता भी है, बिकॉज उनको लाइक यू सेड इट्स जस्ट अबाउट द फोटो शूट। Now that we are talking about it, मुझे लगता है कि हर एक इंसान फिट रह सकता है, बट देर हैज टू बी सम सॉलिड रीजंस. एंड नाउ अच्छा, हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के लोग पहले भी थे, अभी भी हैं. बिल्कुल, नॉट एवरीबडी इज इनटू दिस बिल्कुल। बुलशिट. आई नो वेरी हार्डकोर ट्रेनर्स, वेरी हार्डकोर gym goers, very hardcore fitness enthusiasts, no freaks, which do solely for their own development. They do not have to show it to anyone. They do not go to parties. They do not pop bottles. They do not work out to like get girls.
they work out for their own development and they have a yogic lifestyle. बिल्कुल, टॉकिंग अबाउट योगिक लाइफस्टाइल, ड्राइविंग फोर्स ही है जो मतलब इट स्पीक्स Only. व्हेन जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो दिखता है कि किसकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी. एंड Exactly. इफ वी टॉक अबाउट फिटिंग फिटनेस इन अ बजट, तो आई फील कि अगर सिर्फ हेल्दी रहना आपका ऑब्जेक्टिव है तो एक अफोर्डेबल बजट में आप सात्विक भोजन और फ्री में मिलने वाला इंटरनेट की कॉस्ट आज की डेट पे बहुत माइन्यूट हो गई Nothing. है. Yeah, कुछ भी नहीं. एक योगा मैट और सिर्फ यूट्यूब का वीडियो लगाओ, वो भोजन खाओ और अपनी एक्सरसाइज करो और आप बीमारियों से तो छुटकारा पा जाओगे, इज व्हाट आई फील डेफिनेटली. Majorly. Yeah. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के जब कोई बोलता है कि यार आई हैव अ बैड हेल्थ, क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, देयर इज ऑलवेज एन आंसर टू दिस कि ऐसा कुछ भी नहीं है. यू डोंट हैव टू हैव सुपरफिशियल थिंग्स. इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. True. क्योंकि आपकी ड्राइविंग फोर्स ये होनी चाहिए कि आपको हेल्दी होना है. डेफिनेटली वंस यू आर हेल्दी, उसके बाद आप जॉन एब्राहम बन जाओ, चाहे जो आपको बनना है बन जाओ, दैट इज अ होल डिफरेंट. क्योंकि ह्यूमन वांट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना. Endless. व्हेनेवर यू हैव, आई थिंक बॉडी डिस्मॉर्फिया कितनी बड़ी चीज़ है आज की डेट पे. लोग इतने अच्छे फिजिक बना लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें लगता है इस वाली इधर पे मछली में आँख नहीं दिखाई दे रही है. मतलब हाँ, मतलब बट ये दैट दिक्कत है असल बट दैट एट द सेम टाइम दैट शोज कि अगर इतना फिजिक बनाने के बाद भी आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो, मतलब अब आपका टाइम है कि आपको अपने माइंड पे काम करना है. ट्रू. सिर्फ बॉडी के सिक्स पैक्स से अकेले काम नहीं चलेगा, माइंड के भी सिक्स पैक्स बनाने पड़ेंगे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइटली पुट. और मुझे ऐसा लगता है कि टू हैव अ फिट माइंड एंड टू हैव अ फिट बॉडी, ये मुझे लगता है हम लोग अलग अलग देखते हैं. जो लोग अलग अलग देखते हैं देर सवेर जान लेते हैं कि यार इससे तो काम नहीं बनने वाला, कुछ तो गड़बड़ है. मेरे पास 8 पैक एब्स है, मेरे पास ये है, कुछ नहीं हो यार. सही बात है. तो बोथ आर इंटरट्वाइंड. बिल्कुल, इट बॉइल्स डाउन टू हैप्पीनेस अगेन. एग्जैक्टली. कि आप क्यों कर रहे हो यार, मजा आनी चाहिए. क्यों जा रहे हो आप जिम, क्यों आप कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों खुद को रगड़ रहे हो? सही बात है. बिकॉज यू आर फीलिंग हैप्पी. सही बात है. शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस. शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, long term pain. Definitely. As simple as that. It brings me back to people who do fat diets, crash diets, and That's the whole do gray area. anything for quick results. 75 days में zero figure XYZ. You see that happening, na? I see that happening. I do not comment until unless someone is seeking a professional help from me. और अगर कोई ऐसा है जिसके बारे में मैं कदर करता हूँ यार, तो मैं तब बोलता हूँ. उसके अलावा आई जस्ट विटनेस इट, आई जस्ट लाफ कि ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ फेज. क्योंकि वो करेगा या करेगी तभी समझ आएगा कि ये तो नहीं करना था. हाँ, आप जब तक ठोकर नहीं खाओगे तब तक आप ठाकुर कैसे हाँ बनोगे? हाँ, ठाकुर जिसके 8 पे कहते हैं, हाँ. नहीं होने वाला उसके बिना तो वो. Exactly. There's one more thing that I wanted to talk about, जो अभी के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है. दुनिया भर के लोग बड़ी बड़ी मेडिसिन बना के लोगों को एकदम गिमिक चल रही है पूरी मार्केटिंग की. मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये मार्केटिंग में, वेलनेस इंडस्ट्री में, दैट इज गट हेल्थ. गट हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो फॉर अ फैक्ट कि गट हेल्थ इज extremely important, extremely easy, and at the same time it has everything related, it has things to do with your mind. True. Directly connection है दोनों चीज़ों का. But I want to know from you what you know about it and what are the things that you would suggest for a person to maintain good gut health. See, first you should know that our gut is our second brain. ठीक है. और अगर ये सही है तो ये सही रहेगा, ये सही है तो ये सही रहेगा. That's how you can also develop good intuition. That's how, what do we say? Gut feeling. Gut feel. Oh yes. तो एक इंसान जिसका दिमाग जगह पर है, जिसका पेट साफ है, उसको इंट्यूटिव एबिलिटीज दूसरों से बढ़कर रहेगी. वो अपनी गट फीलिंग की सुनेगा, उसको गट फीलिंग बात करेगी. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या कर सकते हैं जिससे गट हेल्थ सही रहे, सिंपल है बड़ा. बता दूं? बताओ. सुनने के लिए तैयार है सब लोग. हाँ, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो stay away
from those things which have labels on them. अगर आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत पड़ रही है ना, तो फिर उसको कम खाओ या मत खाओ। गड़बड़ है मतलब उसमें तुम मुझे बताओ, बनाना में क्या न्यूट्रिशन लेबल लगा रहता है? कोई लेबल के साथ आता कुछ है? भी मुझे बस ये पता है पोटेशियम में रिच होता है, बस उसमें वो तो लेबल उसकी वैल्यू है ना, दैट्स नॉट प्रोसेस्ड, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितनी ज्यादा आपके फूड की शेल्फ लाइफ रहेगी उतनी आपकी लाइफ कम होती जाएगी। वाओ। और आप मतलब आपको पता है कि जो हेल्थ सप्लीमेंट्स का जो एक पूरा ट्रेंड आया है वो इतना जोरदार है अभी के टाइम पे। आई बिल्कुल। कांट एवरी अदर एड दैट आई सी ऑन माय इंस्टाग्राम कंसीडरिंग समवन आई मतलब I wouldn't say मैं hardcore fitness no, but थोड़ा थोड़ा बहुत I like studying about mind and wellness, छोटी छोटी True. चीजें जो भी मैं प्रैक्टिस कर पाती हूँ करती हूँ। तो considering that मेरे हर इंस्टाग्राम ऐड पे हर तीसरा ऐड जो है वो एक हेल्थ सप्लीमेंट का है, और वो सारे अलग हैं। और कोई कोलाजन बेच रहा है, कोई गट हेल्थ के लिए कुछ उल्टी सीधी चीजें बेच रहा है। ट्रू। वो सब लिख भी ये रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक है और आयुर्वेदिक है, बट देन वो पैकेज चीज बेच एग्जैक्टली सेल उसके बाद आप पीछे जाकर देखोगे तो जो सो कॉल्ड आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी उनके पीछे आयुर्वेदिक चीजें नहीं है। वो आपको बोल रहे हैं ये लो आटा नूडल्स। आपने कभी उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करी कि उसमें आटा कितना और मैदा कितना? 70% मैदा, 30% एग्जैक्टली, आटा। वो भी रेयरली आटा ब्रेड विथ स्कैम है। एग्जैक्टली विथ इमल्सिफायर्स, विथ वेजिटेबल ऑयल, विथ एसिडिटी रेगुलेटर्स, व्हाट नॉट। True. तो मुझे ऐसा लगता है जिन चीजों पर आपको न्यूट्रिशनल लेबल नहीं है, जो आपको डायरेक्ट मदर नेचर से आ रहे हैं, विच आर नॉट प्रोसेस्ड, विच हैव अ लो शेल्फ लाइफ, you should go for that. So basically what I'm trying to say is कि stay away from processed foods, and that's not a suggestion, that's a prescription. Seriously. Because gut health related there are many issues. IBSI, if you know about it, Yeah. irritable bowel syndrome, True. it's nothing but a mental and gut health related illness. Disorder, yeah. Correct. True. It's a syndrome. Temporary, which is temporary. Exactly. Nothing that can't be fixed. Mhm. So get your fitness check dialed in, get your diet in check. तो by diet I mean त्यागना नहीं बोल रहा हूँ मैं कि तुम पीना छोड़ दो, पानी भी लोग कुछ कुछ समय के लिए, मेरा सो एंड सो फोटो शूट है मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं शक्कर नहीं खा रहा हूँ, Salt मैं cut. नमक नहीं खा रहा हूँ, तो क्या खा रहे हो आप? सर खा रहे हो एक दूसरे का? कुछ भी नहीं है। There's nothing. Fitness is very easy. Diet is very easy. Stop having processed foods, or at least try and have 98% of those foods which are natural. Okay. Be it anything, but stay away from all those shitty processed crap I'm talking about. Correct. Yeah. Gut health is super important. Gut health is important. That brings me, क्योंकि अपन ने IBS की बात की और वो मेंटल और गट हेल्थ स्ट्रेस रिलेटेड इशू है, that brings me to a major issue. The name is stress. मतलब stress, it's such a common word now. You see every other reel is telling you stress कैसे कम करें, how to manage your stress. Every other so-called Ayurveda brands that we were talking about, everybody यार मतलब वही अगेन कमिंग बैक टू हेल्थ सप्लीमेंट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों के लिए लोगों को मतलब दैट शोज, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मतलब इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, और डिमांड है मतलब लोगों को ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। Exactly. तो स्ट्रेस, आई फील स्ट्रेस इज अगेन इट इज अबाउट एनर्जी, something that is disrupting your energy, something that is bothering the natural flow of how your emotions should work. So tell me, what are your views on stress? स्ट्रेस यार हम लोग हमारे जब अगेन मैं हर एक चीज़ को मैं चाहता हूँ कि हम लोग हमारे पूर्वजों की तरफ ले जाएं और उनसे सीखें, एंड हाउ वीक सोसाइटी हैज़ बिकम नाउ एंड हाउ वी शुड रेक्टिफाई इट विथ इमीडिएट इफेक्ट। यार वो लोग रोज़ शिकार पर जाते थे, ठीक है, वो लोग रोज़ लड़ते थे, वो लोग रोज़ स्ट्रेस को देखते थे, ठीक है। हमारे पापा मम्मी ने क्या करा यार, उनके पापा मम्मी ने क्या करा, क्या उनके पास कभी स्ट्रेस नहीं आया? वो तो नहीं बात करते थे इस तरीके की, वो तो नहीं पॉप करते थे कोई एंग्जाइटी पिल्स, वो तो नहीं ये चीजें करते थे। वो नदियां पार करके स्कूल जाते थे ना। एग्जैक्टली, आप उनकी कहानियां तो सुनो, उसमें उनको एंग्जाइटी नहीं होती थी नदी के बीच में या थिंग्स लाइक दैट।
and we are fortuitous enough to be born into a family where we have all the things, when we have all the necessities, Mhm. when every single thing is being taken care of, तो हम उनको बदले में क्या दें? ट्रॉमा दें, एंजाइटी दें, डिप्रेशन दें, ट्रिपिडेशन दें? नो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तो होगा, ये तो लाइफ है. पर अब आपका इसका परसेप्शन ये है कि सपोज ये मेरा कप है, ये ढुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पानी फैल जाएगा. दिस एग्जैक्टली नथिंग एल्स. और ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियोज हैं कि देयर इज नथिंग which is fatal. There's nothing. And not fixable. Exactly. So जब ये चीज आपको पता चल जाए कि X, let's say, Mhm. X is causing me anxiety. Mhm. No. Your perception, you decide, you are the one who is deciding the fact that this thing will cause me stress. This thing which cause me uh, anxiety. If this will happen, I will be depressed. True. And so will be depressed. It's all in the mind ना, मतलब Exactly. terminologies बहुत सारी बना दी. Some people call it anxiety, some people have this मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं. OCD हो गया है, ADHD हो गया है. साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर बोले ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है. लोग ऐसे कॉमनली यूज करने लगे हैं इन चीजों एग्जैक्टली को. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि अगर इस चीज का फिक्स चाहिए, अगर तो सबसे पहले वी हैव टू जस्ट थ्रो दैट लेबल ऑफ. डेफिनेटली. नॉर्मल हो जाओ ना. बिल्कुल. या तो आपके पास बहुत समय है, बहुत बढ़िया तरीके से आपके पास समय है. दूसरी बात, आपके पास बहुत पैसा है, आपके माँ बाप के पास बहुत पैसा है. कि आपने सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, हाँ मतलब बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव बात बोल रहे हैं अभी हम लोग. हाँ. But self-created problems is a thing. एग्जैक्टली It is a thing. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. And again, it comes back to the fact कि आपकी thinking कैसी है. It's about what is the way of your thinking. Also your surrounding matters. Correct. Do you agree that a individual is, when he expands, Mhm. it becomes society? Definitely. Expansion of an individual is society. Yes. So any ill traits or any bad habit of the individual will reflect back upon, Society. reflect to society, Yes. and vice versa. Mhm. कि any ailments from the society will reflect on the individual. Yes. So मुझे ऐसा लगता है कि when there's so much going on, right, तो you should be the energy converter. Do not get influenced by the energy. Influence the energy, because it's that simple. You just have to wake them people up. You have to shake them कि यार देखो, ऐसी नहीं है चीजें, इतनी ही सरल है. Exactly. आ जाओ ना सरलता पे यार. लोग बोलते गांव में तो लोगों को एंजाइटी नहीं हो रही. उनको पता भी नहीं exactly उनको क्या होता है. क्योंकि उनको नहीं पता है. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, राइट. कि उनको लेबल ही नहीं है ना उनके पास, तो नहीं हो रहा. उनको तो 2 लपड़ मारते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, हेल्दी रहते हैं. उनको देखो ना क्या इशू है उनको. सही बात है. नथिंग. गेट बैक टू रूट्स. जनरेशनल पैटर्न ब्रेक करना जरूरी है. अभी True. जब तुम बोल रहे थे, यू मेंशन्ड पेरेंट्स से हमें क्या कुछ नहीं मिला और हमने उन्हें बदले में एंजाइटी और दुनिया भर एग्जैक्टली की पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज बना के एग्जैक्टली. दे दिए. जबकि इन मेंटल हेल्थ इश्यूज को 2 मिनट साइड में रखा जाए तो देयर इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रैटिट्यूड. ट्रू. अगर हम सिर्फ रोज ये सोचे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस दुनिया में लाया, हमारे लिए इतनी सारी चीजें की, द फूड ऑन द टेबल, द वाटर दैट वी आर Exactly. ड्रिंकिंग, क्लीन वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग, Exactly. everything we need to be thankful for it. Because and मैं बहुत वैसे हवा में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि there are people who are not getting these basic things as well. बिल्कुल शेल्टर बिल्कुल नहीं है उनके पास, बिल्कुल खाने को नहीं है प्रॉपर, बिल्कुल. और हमारे पास सब है क्योंकि हमारे पास सारी चीजें बढ़िया मेंटेन्ड है. तो हम अपने मन से यार अब तो कुछ दिक्कत नहीं है, अब कुछ दिक्कत बनानी पड़ेगी. And what's creating that noise? कि ये पता चल रहा है. एक्सपोजर कुछ ज्यादा ही हो गया. टू एक्सपोजर. मच नॉइज. हर कोई घर पे बैठ के ज्ञानवान हो गया है इन फॉल्ट्स. कि फॉल्ट्स का जरूर पता है, सोल्यूशन नहीं पता उनके, बिल्कुल बिल्कुल. पर फॉल्ट पता है. तो उनके पास एक एस्केप रहता है
कि घर वाले बोल रहे हैं क्यों ना ये चिपका दिया और ये वो डायरी में से निकाल के ये वर्ड फेंक दिया, डेफिनेटली ये हो रहा है, घर वाले क्या बोलेंगे? तो दैट्स व्हाट कि यू डिसाइड इफ यू हैव टू बी अ स्नोफ्लेक और यू हैव टू ब्रेक दिस थिंग. डेफिनेटली। और ज्ञान के भंडार की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान का भंडार तो अभी जो हम दे रहे हैं वो ज्ञान ही है। बट व्हाट आई विल कम बैक टू द फैक्ट इज कि जो तुमने अभी बोला कि प्रॉब्लम्स, अगर आपके पास ज्ञान आ गया, आपको ये पता है अरे ये प्रॉब्लम हुई, तुमको पता है इस प्रॉब्लम से 10 प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाएंगी, आप इस बारे में ज्ञान दे रहे हो, इट्स नॉट वर्किंग। ट्रू. अगर आप सोल्यूशन बता रहे हो, डेफिनेटली वो ज्ञान किसी काम का है। बिल्कुल. और मुझे लगता है कि आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति से आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा देर तक बात करनी नहीं चाहिए बिल्कुल। जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात ना करे. बिकॉज दे फीड ऑन योर एनर्जी। एग्जैक्टली. they'll just give you 10 more words जो आप अपने बैग में डाल के वापस घर चले जाओगे and you won't be able to sleep. Things like that. करेक्ट। और जब इतनी सारी चीजें, स्ट्रेस इज गेटिंग आवर एनर्जी zapped and there is so much negative energy trapped within us because इतने सारे mediums है ना उसको grasp करने के। तो what I'm trying to ask you again here is कि what are the ways to release your energy? Since we are talking about energy, I consider it as prana. Prana, life force, which is in you, which is in me, which is in every single plant जो उसको जीवित रखा हुआ है, हवा चल रही है, there's some force, there's some life force. Correct. Consider it as prana. और जब हम बात करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन वी शुड नॉट लेबल इट, व्हाट वी शुड सी बिहाइंड दैट, ये सब क्यों होता है? व्हेन प्राणा गोज अप और लो, आप एक इंसान से मिलोगे वो हमेशा खुश रहता है, औरों को भी खुश करेगा. व्हाई? बिकॉज ही हैज हाई प्राणा लेवल, हाई एनर्जी लेवल्स. ठीक है. अगेन वहां पर ऑन द अदर साइड जिसको आप कंसिडर करोगे नेगेटिव या टॉक्सिक, बड़ा ट्रेंडिंग है ना, तो टॉक्सिक, तो वो क्यों? क्योंकि उसका प्राणा लेवल कम है. एंड नाउ इस बेचारे इंसान ने ऐसा क्या करा जो इसका प्राणा लेवल कम हो गया और लोग इसको टॉक्सिक बोल रहे हैं, लोग इसको नेगेटिव बोल रहे हैं? उसने वही करा, इसने अपने रूट्स से डिस्कनेक्ट हो गया. टू मच सोशल मीडिया, जीरो लिबिडो और सेक्सुअल ड्राइव. ठीक है, क्योंकि जंक फूड, जंक सेक्स, पोर्नोग्राफी, व्हाट नॉट. ऑल्सो गॉसिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो आपकी प्राणा लेवल कम कर दे, पर क्या हमको उस पर फोकस करना है? 5-10 चीजों फोकस करा, हटा दिया. व्हाट आर दोज थिंग्स? कि आप बैठो, आप रूम में आओ और लोगों को पता चल जाए यार कुछ तो है. रूम का वाइब चेंज हो जाए। एग्जैक्टली. इन्फ्लुएंस द एनर्जी इन द रूम. तो आपको क्या वो क्षमता चाहिए? ऑफ कोर्स। दैट्स व्हाट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दैट्स वी हैव टू डिस्कस. करेक्ट। humans have become nothing but soulless robots. अभी बहुत सारे लोग जो तुमने अभी मेंशन किया, द थिंग्स दैट यू मेंशन, फ्रॉम जंक फूड टू क्या बोलते हैं, पोर्नोग्राफी टू लो लाइफ टेंडेंसीज, इनको यार यही बोलते हैं, बिल्कुल यही मतलब बोलते हाँ. हैं. तो वो चीज़ है कि ह्यूमंस हैव बिकम लाइक दैट, मतलब ह्यूमंस में ह्यूमैनिटी, वो जो द थिंग दैट मेक्स देम ह्यूमन, वो चला गया है. उसी को तो प्राणा बोलेंगे, फोर्स ऑफ लाइफ. एंड द थिंग इज, जो तुम अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ऑरा क्लेंजिंग और नेगेटिव पॉजिटिव, व्हाट आई फील इज कि अगर इतना ज़्यादा ऑरा क्लेंजिंग में चला गया तो पूरा प्लैनेट में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं सब ऑरा क्लेंस तो है नहीं. आप बाहर जाओगे, आप काम करोगे, आप 10 लोगों से मिलोगे, यू कांट बी थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग. इट टेक अ टोल ऑन योर माइंड. आप काम करोगे कि ये चेक करोगे सामने वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है. एग्जैक्टली. बिकॉज आपको हर तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा ना. Exactly. दैट इज व्हाई आवर पेरेंट्स रेज्ड अस ना, बिकॉज they raised us for this world. The world is not always good, not always bad. It is a mix of both. मतलब जो चीजें, दोनों चीजें कोएग्जिस्ट करती हैं, वो yin and yang. वैसे ये बोलकर हम लोग बहुत लोगों की दुकानें बंद कर रहे हैं यूट्यूब पर. हाँ. जिस किसी के भी दिमाग में चीज बैठ जाएगी, अरे वो तो यूट्यूबर बोल रहा था हाउ टू क्लीन योर ऑरा, अरे वो तो ये बोल रहा था, अरे बुरी नजर से कैसे बचें, थिंग्स लाइक दैट. अब क्या होगा? ये तो bullshit निकला. एग्जैक्टली. True that. तो बीएस इंफॉर्मेशन भी से भी दूर रहो भाई. दैट्स द बिगेस्ट. देयर इज नथिंग as lethal as half knowledge. True. There's nothing as lethal.
or a person carrying half knowledge will destroy everybody, It not is just better knowing nothing. exactly. अब देखो ना, कौन सफर करता है? जिसको नहीं पता है वो खुश रहता है, जिसको सब पता है वो भी खुश रहता है। जो बीच में जो लटक बीच में झूल रहे होते हैं ना कि हाफ नॉलेज, अरे वो यूट्यूबर वो रील में तो ऐसा बोला, उसने तो ऐसा बोला, अब क्या करें, इसकी सुने उसकी सुने। सही बात, दिल की सुनो ना, सही बात, आपकी फ्री विल जो अलाउ करे definitely. कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ रही, पॉजिटिव नेगेटिव की, बुरी नजर की। ये क्या है, कहाँ से आ रहा है ये? सोसाइटी इज जस्ट प्रोजेक्टिंग देयर फियर्स अपॉन यू। जब आपको ये बात समझ आ जाए और आपका फ्री विल क्या अलाउ करता है कि यार मुझे जब जिस वक्त जहां जाना है मैं जा सकता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द बुलशिट एनीबडी हैज टू से। दैट्स व्हाट बीइंग ह्यूमन इज। तो वो करो ना यार जिसमें मजा आ रही है, जिसमें आपका फ्री विल ज्यादा एक्सेस हो रहा है। क्यों क्यों फंसा लिया, ट्रैप क्यों कर लिया खुद को चीजों में? The whole thing is कि boxed आपका जो mind है और आपकी जो body है, don't keep it boxed. फ्री हो जाओ। Exactly. एक और चीज़ जो मतलब I've studied a little bit about yoga and I learned that different emotions get trapped in different body parts. For example, I studied कि anger जो है वो generally आपके chest में ट्रैप हो जाता है और छोटे छोटे इश्यूज लंग्स में इश्यूज कॉज करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। और भी ग्रीफ है जो आपके क्या बोलते हैं पेल्विक एरिया में जनरली ट्रैप होती है। डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ह्यूमंस। करेक्ट, इसलिए इन विमेन मोस्टली ग्रीफ गेट्स ट्रैप्ड इन पेल्विक रीजन्स, इसलिए इवन इनफैक्ट योर फियर्स, यस। और इनफैक्ट योर इसी फियर, की वजह से जो बेसिकली पीसीओएस है, फर्टिलिटी इश्यूज है, सारी होते चीजें, हैं लोगों ढेर को। सारी चीजें। So that brings me to movement, because Movement is emotion and energy can definitely be released by movement. you know what, there's this term called movement is medicine, कि all these diseases are your which tend to get into your physical manifestation because it was trapped inside. Yes. That so-called unreleased energy or emotion was trapped inside. आपको सरल चीजें थी, since you like you mentioned movement is medicine. अगर मैं उस इंसान को बोलता है यार तो इसको सीरियसली मत ले, जाके डांस कर या सिंपली टैप कर खुद को, टैप कर कहाँ पे तेरे को फील हो रहा है, फील कर, टैप कर खुद को एंड गेट रिलीज्ड। लोग नाचो ना यार, जिम करना है जिम करो, नाचना है नाचो, गेट समथिंग और द अदर टूल or movement to release that energy, otherwise it will definitely manifest into your physical form, into your body. तभी तो आजकल लोग मतलब जिम एंथुसियास्ट और जो कोचेस होते हैं फिटनेस के, देयर इज अ न्यू टर्म दैट आई रिसेंटली केम अक्रॉस, दैट्स मूवमेंट प्रैक्टिशनर। अच्छा। एंड मूवमेंट प्रैक्टिशनर्स आर नथिंग बट फिटनेस एक्सपर्ट्स जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि कुछ लोगों को जिम करने में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा सूट नहीं करती हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ प्रमोट करते हैं कि आपको फिट रहने के लिए सिर्फ मूवमेंट करनी है। इफ डांसिंग वर्क्स फॉर यू, इफ सिटिंग एंड ब्रेथ वर्क वर्क्स फॉर यू, वो तो सबके लिए वर्क करता है। ब्रेथ Breath वर्क work तो is मैजिक है। life. That's what I feel. And tapping, since you mentioned tapping and dry brushing, I think lymphatic drainage is a topic जो इतना touched नहीं है, मतलब people address it, but then इतना ज़्यादा common अभी trend में आ रहा है धीरे धीरे, तो let's talk about that. See, there are few systems in our body like lymphatic system, skeletal system, neuromuscular system, digestive system and visceral system. तो जब इन पांचों पर एक होल्ड हो जाता है या ऊपर ऊपर से ही वन नोज कि व्हाट हैज टू बी डन टू डिग्रेड और अपग्रेड, तब हम लोग इस चीज को लाइक देन यू कैन बी अ परफेक्ट बीइंग। और चीजें उतनी ही सरल हैं, जैसे तुमने बताया मूवमेंट, जैसे तुमने बताया कि टैपिंग, तो थिंग्स लाइक दैट, एज सिंपल एज दैट। ऑल्सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन चीज़ों की बात करनी चाहिए जहाँ हम एनर्जी लीक कर रहे हैं। You won't believe 90% of the people, or the stats would be even more, they are leaking their energy and they are not aware of it. In what form? In any form, like if they're using their phones,
दे आर लीकिंग देयर एनर्जी, और एनर्जी क्रिएट करने के लिए व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग नथिंग. टॉप मोस्ट, अगर इस पे मैं बात करना चाहूँ, ऑल्सो इट माइट बी controversial also, पर ठीक है, I care damn. We should talk about how one should not leak their sexual energy here and there. It's a very sensitive topic. Exactly, but one has to talk about it. Someone has to talk. Exactly, and I feel this is my way to give back to universe, I guess. So yeah, I will talk about it. मुझे ऐसा लगता है, जब आप, अच्छा वैसे तो कौन सी चीजें हैं जिसमें वन इज लीकिंग देयर सेक्सुअल एनर्जी? सबसे बढ़िया चीज है पॉर्न. आप देखो, you are getting all that stimulant, your body is reacting in such a way, your hormones are reacting in such a way that you have, being a guy, अगर एक लड़का देख रहा है porn and he is getting fascinated, his body is releasing those hormones कि उसने उस लड़की के साथ, he has made love to her, they have been into an intercourse. Correct. Same goes with other gender. This is happening with something that is completely artificial. Artificial stimulant, frying up of hormones. Even अगर आपके सामने आपका कोई पार्टनर रियलिटी में भी आ जाएगा ना, and you have to make love to her or you have to make love to him, और आपको उस लेवल का स्टिमुलेंट नहीं मिला जो पॉर्न में दिखाया गया था, God. then there's a downhill road altogether, performance anxiety, erectile dysfunction, what not. और ये सब भी टेम्पररी है. इससे भी डॉक्टर्स की दुकानें नहीं चालू जानी चाहिए. अरे अरे ईडी की बातें आ रही है, परफॉर्मेंस बढ़ाने की बातें आ रही है, फिर ये लो घोड़े की गोली और ये तो ये भी ढेर सारी चीजें हैं. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एक छोटी सी चीज से. ऑल्सो हाँ, यहाँ पर बहुत से लोगों को ऑफेंड कर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत लोगों का रूटीन ही यही है. फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दिल गो टू अ पार्टी, दिल गो टू अ गुड पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. अगेन यहाँ पर ऑल्सो एक बढ़िया ट्रेंडिंग चीज है जिससे आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी बढ़िया तरीके से लीक कर सकते हो. एंड दोज आर गोइंग टू पार्टीज. Parties. या आप, यू सी, क्यों जा रहे हैं लोग? मोस्टली उनके दिमाग में क्या चल रहा है? द पीपल हु आर लीकिंग देयर सेक्सुअल एनर्जी इन वन नाइट स्टैंड्स एंड डेट सो कॉल्ड डेटिंग कल्चर, कि वो किसी पार्टी में गए हैं और उनके नैन मटक्के हो गए हैं, उनको पता है व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग, और now they have to get into each other's pant, is the easiest way to leak energy and to get STDs. Casual hookups. Exactly. Also get ready for, इसके लिए तो आप रेडी रहो कि you are not aware of what that other person has to bring to you, like diseases I'm talking about. उसके साथ साथ जो ट्रॉमा वो लेकर आएगा ना, be ready for that also. अगर you are settling for less and you have to make your decision over the bar counter within few seconds, your future has to be like, your future is dependent upon this single thing you call casual hookup. चल रहा है ना, friends with benefit. मुझे तो लगता है this should be called friends with major disadvantages. क्योंकि what are they bringing are only disadvantages only, nothing for like Beneficial purpose. beneficial तो कुछ है ही नहीं. I agree. Meaningless sex, casual hookups एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. Not just STIs और STDs को bring in करने का एक गेटवे है, but also again coming back to energy और जो भी हम कॉस्मिक बातें कर रहे हैं, जो तुमने ट्रॉमा वाली बात बोली, so many people have no idea कि जब इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स इज सेक्रेड. True. सेक्स इज सेक्रेड. True. वो बात अलग है कि द आइडिया ऑफ सेक्स इज ओवररेटेड इन दिस एरा एंड सेक्स इज अंडररेटेड. दोनों चीजें, मतलब लोग मतलब बहुत
कूल मानते हैं कि यार मैंने बॉडी काउंट है, इतने सारे लोगों बॉडी के काउंट या है ना, एग्जैक्टली सेक्स को एकदम ऐसा बाजार में बस कहीं पे भी मुझे wherever लगता है you all get it. those people who are making this thing like a big hype about their body count na, I guess according to my opinion they belong to streets. That's all. कि ये मेरा बॉडी काउंट है, ये मेरा बॉडी काउंट है, और दे आर लुकिंग डाउन अपॉन अदर पर्सन कि ये इसका बॉडी काउंट इतना नहीं है. और ये कोई बड़ा फ्लेक्स नहीं है. नथिंग. इंटरकोर्स के टाइम पे लाइक आई मेंशन, क्योंकि वो चीज सेक्रेड है, तो सामने वाले मतलब टू पीपल आर इन्वॉल्व इन इट जनरली. तो if one person has a set I mean a few set of traumas and again I'm sorry to use the word negative, but negative emotions trapped in their body, a lot of things that are energy wise faulty, ट्रू. आप exchange करते हो with the बिल्कुल other करते हो, person. बिल्कुल Sex is करते हो, nothing but exchange of energy. बिल्कुल करते हो. एंड दिस होल कॉन्सेप्ट, अगर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड, रोमांटिक गानों को हटा दें, जब अगर मैं सेक्स की बात करूं तो इट इज अ डिवाइन प्रोसेस, और आप अपना पार्टनर भी उस अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कि दैट पर्सन इज ऑल्सो ऑन दैट लेवल, मेरे लेवल पर है, हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए. इट्स नॉट लस्ट. अगर वैसा कुछ है एंड यू बोथ कम टुगेदर एंड आर फीलिंग दैट थिंग, तो ट्रस्ट मी, योर प्राणा लेवल will go up. It will shoot up from your base chakra to your crown chakra. That's what sex is. करते भी नहीं आता है. हाँ, नहीं आता है. That's what. कि they're just looking upon girls over bar counters and फिर 2 मिनट में फ्री कर देते हैं उनको. That's what it is, yeah. Yeah, and again coming back to the whole energy exchange thing, sex is sacred. मैंने if you read in the books you will see, जो आपने अभी बोला ना कि आपका बेस चक्र से लेकर जो जब आई थिंक जो भी परप्लेक्स रिफ्लेक्स जो भी चक्र होता है, जो सबसे टॉप चक्र होता है, वहां तक पूरा एनलाइटनमेंट, क्योंकि बोलते हैं कि निर्वाणा अचीव होता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वाइल परफॉर्मिंग इट करेक्टली. True. बट ये जो बात, चलो ठीक है, ये सब चीजें एक बार के लिए साइड में रखें, तो भी आज के टाइम पे बेसिक स्टेप जो कोई ले सकता है वो ये है कि मीनिंगलेस सेक्स तो एटलीस्ट अवॉइड किया जा सकता है बिल्कुल. फॉर द टीनेजर्स, फॉर द यंग पीपल. दिस शुड फर्स्टली बी, मुझे लगता है ये चीज़ें लैक ऑफ अवेयरनेस से होती हैं. मुझे लगता है ये चीज़ें आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो उससे होती है, और आपके सराउंडिंग में रहते हो उससे होती है. अगर उनको इस चीज़ के डाउनफॉल पता चल जाएं तो वो भूल कर भी ये चीज़ ना करेंगे, और अगर उसको इस चीज़ के फ़ायदे पता चल जाए कि सही तरीके से सही इंसान के साथ अगर आप करो, तो हाउ इट कैन बी अनदर टूल फॉर योर betterment. डेफिनेटली. It will take you to places you haven't been. एग्जैक्टली. आई थिंक जो सेक्स एजुकेशन जिसको बोलते हैं, ये सही टाइम पे जो आपने बोला ना कि अगर सही टाइम पे व्हेन यू आर बेसिकली एडोलेसेंस में जब होते हो, जब व्हेन आई टीनेजर, तब अगर आपको कोई ये सिंपल साइंस समझा दे, मेडिकल टर्म्स में भी और स्पिरिचुअल टर्म्स में भी, True. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल अवॉइड इट. Here, the whole school education system, it should teach, and schools and colleges are a scam. डेफिनेटली. Truly. क्योंकि वो आपको खुश रहना नहीं सिखा रहे हैं, वो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सिखा रहे हैं. सेक्स एजुकेशन अब कुछ स्कूल्स में आया होगा तो आया होगा, पर वो भी वेस्टर्न अडाप्टेशन है. आपको वो नहीं सिखा रहे हैं कि हाउ टू डू इट परफेक्टली. हाँ, वो आपको बताएंगे ना, कुछ पिल्स बता देंगे कि हाउ टू आप टिक कैसे पाओ. अरे क्यों टिकना है, टिकने से क्या होता है, और चीजें क्या है, बिना चीजें लिए भी आप टिक सकते हो. आप ब्रेथ पे फोकस करो ना यार, आप उसको घुमाओ ना हर हिस्से में अपनी बॉडी के. दैट लाइफ फोर्स, व्हेन यू आर अबाउट टू फील, व्हेन यू आर रीचिंग द क्लाइमेक्स, यू हैव टू बी देयर. और कुदरत ने हमको इस तरह बनाया है कि अ गर्ल शी नीड्स सम टाइम, गाय उसका अलग चीज है. तो जब आपको ये दोनों चीजें पता हो एंड यू रिस्पेक्ट ईच अदर, उसके बाद जब आप ये प्रोसेस
करो सही तरीके से, विदाउट लस्ट, विदाउट गेटिंग आउट ऑफ दैट पार्टी की जल्दी कपड़े उतार, थिंग्स आर डन विद इन 5 मिनट्स, चलो घर जाना है. हाँ. That's not it. Please stop. You'll waste your sexual energy, you'll waste your prana, and within few sessions you'll be completely drained. आपको उस इंसान के साथ मजा भी नहीं आएगी, ना उसको आपके साथ आएगा. Then you'll hop on to any another person to waste them. So this is bullshit. Exactly. That is why it is called meaningless sex. Meaningless junk. Exactly. Totally. And all of these things, when you spoke about climax, when you spoke about breath work, when you spoke about how to sustain, how to टिके कैसे रहना है, आखिरकार ये सारी चीजें, हॉर्मोन्स, हैप्पीनेस, वापस सब चीजें वहीं आ जा रही है. बिल्कुल. स्ट्रेस रिलीज करने से लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट, बॉडी मूवमेंट, गट हेल्थ, आज हमने जिन भी चीज़ों के बारे में बात की है वो सारी कोरिलेटेड है हैप्पीनेस से. बहुत छोटे छोटे माइन्यूट हैबिट्स हैं जो वन थिंग एट अ टाइम. नोबडी इज टेलिंग पीपल के ओवरनाइट आज तो आप सोए हो एंड यू नॉट अ पर्सन हु इज अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड टुमारो यू विल वेक अप के मतलब जादू मेरे अंदर शक्तियाँ आ गई है महा, ऐसा तो आप ऑब्वियसली यू वोंट वेक अप लाइक दैट. मुझे लगता है कि बेबी स्टेप्स से स्टार्ट होती है चीज़ें. अगर आपने, इट्स एज सिंपल एज दैट, कि अगर आपने सोचा है कि यार सपोज, ठीक है, बहुत से लोग रिलेट करेंगे इससे, कि मैं चेस्ट के लिए कुछ करूँगा या मैं अपने आर्म्स के लिए कुछ करूँगा, और अगर मैंने सुबह सोचा है 7 बजे उठकर करूँगा और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि मैं रात होने तक एक चीज़ ऐसी करूँ जो उसका फ्लो सेट कर दे. तो दैट्स ऑल यार. छोटी छोटी बेबी स्टेप्स. एग्जैक्टली, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट बोलते हैं इसको. हाँ व्हेन यू गो टू स्लीप यू फील के यार ठीक है 10 चीजें सोची थी बट दो एक तो चीजें करी. एटलीस्ट अटेन कर ली. हाँ जी, यू फील हैप्पी अबाउट इट. बिल्कुल. वेरी स्मॉल थिंग्स बट देन हैप्पीनेस. ह्यूज इम्पैक्ट. एग्जैक्टली, स्मॉल रोल ह्यूज ह्यूज इम्पैक्ट. इम्पैक्ट. हमने भी मीम यूज कर लिया इवेंचुअली. So yeah, I think that's it for today. These were the things that we wanted to address, and I'm sure this would be helpful to people who are willing to gauge this knowledge. Which are those, it's strictly for those people who are willing to be like, what do we say? A better version. They want a better version of themselves, and they want to break out of monotony, and they want to stop being their mediocre self and to get elite. That's all. It was great having you here. Same here. I Same here. loved the conversation. Same here. The conversation, the flow of the conversation, हमने n number of topics cover किए. The flow, it was effortless, and I would just like to say that I'm looking forward to Many more address podcasts. more such topics with you Definitely and going with to happen. beautiful people like you. Thank you. So yes, stay tuned for such beautiful conversations. Like, comment, subscribe, and yeah, सब कर दो यार. that's it for today. And maintain the energy. Signing off. Bye. Bye. क्या? Press the bell icon, guys. Oh. Press the bell icon.